Hello students, welcome to Chemistry Video Solutions ANTS Part Test 4. Question number 26. Which reaction with the following values of delta H and delta S at 400 Kelvin is spontaneous and endothermic? देखिए यहाँ दो चीज़ें पूछे हैं, पहले spontaneous, सो दूसरा है endothermic. सो endothermic होना है तो delta H का वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव. So out of 4 options, so 2 options we can remove. So C and D. In C and D, delta H is positive. C or D. At the same time, he is telling spontaneous. For spontaneous reactions, delta G is negative. So delta G is equal to delta H minus T delta S. T delta S value should be greater than delta H. डेल्टा H पॉजिटिव वैल्यू है, T डेल्टा S का मैग्नीट्यूड डेल्टा H से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन T डेल्टा S वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए. सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू को ये ओवरकम करते तो ओवरऑल वैल्यू डेल्टा G क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनेगा. इसका मतलब इसके लिए डेल्टा S भी पॉजिटिव होनी ज़रूरत है. अभी देखिए, सो कौन सी ऑप्शन में सो डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा S पॉजिटिव है, सो ऑप्शन सी. चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. 400 केल्विन इन्होंने दिया है, सो डेल्टा G इज इक्वल टू सो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. सो डेल्टा H इज नथिंग बट 48 माइनस टेम्परेचर 400. यह प्रॉब्लम नहीं है, दोनों किलो जूल्स में ही है, इंटू 135 into 10 to the power of minus 3. So that is equal to 48 minus 400 into 135, 54,000 आएगा. 54,000 into 10 to the power of minus 3, 54. So overall value is negative. So delta G is negative. So reaction is spontaneous as well as endothermic when delta H is plus 48 and delta S is plus 135 into 10 to the power of minus 3. So option is C for this one. Question number 27. Molar heat of vaporization of a liquid is 6 kilojoules per mole. If the entropy change is 16 joules per Kelvin per mole, the boiling point of the liquid is. Change in entropy is equal to, so this is the standard formula. Boiling temperature, enthalpy of vaporization, which is nothing but molar heat of vaporization. Molar heat of vaporization of a liquid is 6 kilojoules. That means 6 into 1000 joules. आपको देख के लेना पड़ेगा सर, ये किलो जूल्स हैं, ये जूल्स हैं, इसलिए मैं जूल्स में कन्वर्ट किया हूँ बाई 16. आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा. सिंप्लीफाई करके देखते तो आपको 375 मिलेगा. यूनिट आपको आएगा केल्विन में, नॉट इन डिग्रीज. सो ऑप्शन इज बी. Question number 28. The standard enthalpy of formation of SF6 in gaseous state, sulfur in gaseous form and fluorine gaseous form are minus 1150 plus 280 and 85 kilojoules per mole. Average bond energy पूछ रहा है. देखिए सल्फर, एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is equal to enthalpy of formation of SF6 minus enthalpy of formation of sulfur gas plus enthalpy of formation of fluorine atoms. यहाँ 6 फ्लोरीन दिया है इसलिए 6 इंटू कर रहा हूँ, which is nothing but SF6 के लिए कितना दिया है सर, माइनस 1150. सल्फर के लिए दिया है 280 प्लस एक फ्लोरीन के लिए दिया है 85. सो 6 इंटू 85, तब आपको बनेगा 1940. सो SF6 बनने के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1940 हुआ है माइनस 1940. लेकिन ये 1940 आपको 6 बॉन्ड्स फॉर्म करने में यूटिलाइज हुआ है. कितने बॉन्ड्स, 6 बॉन्ड्स. एक बॉन्ड के लिए कितना हुआ, 1940 बाई 6. अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 323.33 kilojoules per mole. So option आपको मिलेगा D. Question number 29. Sir, this is matching
लेकिन आई हैव गिवन डायरेक्ट फॉर्मूला सर. फर्स्ट वन इन्होंने पूछा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. सो आइडियल गैस लिया है, आइडियल गैस का रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताया इन्होंने. सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वी नो दैट so delta U is equal to 0, delta H is equal to 0. So क्योंकि ideal gas is a function of number of moles and temperature. So when temperature is constant, so change in enthalpy and change in internal energy is 0 for ideal gas, and work done is equal to reversible isothermal expansion. A direct formula है 2.303 RT log, so V2 by V1. सो आपको ए के लिए मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन एज वेल एज फोर्थ ऑप्शन. रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस. सो रिवर्सिबल प्रोसेस एडियाबैटिक में आपको फार्मूला यूज कर सकते हैं पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला. एंड सेकेंड फार्मूला आप यूज कर सकते हैं. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू विच इज नथिंग बट एनसीवी डेल्टा टी. आपको सीवी को सब्स्टिट्यूट करते तो आर बाई गामा माइनस 1 आएगा. सो इसलिए आपको रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस यू कैन टेक बोथ second formula and third formula. After that irreversible adiabatic expansion of an ideal gas. irreversible process के लिए हम ये मेथड फॉलो करते हैं. सो इसलिए आपको सी के लिए थर्ड आएगा. irreversible isothermal compression of an ideal gas. isothermal process में आइडियल गैस के लिए आपको डेल्टा H 0 रहेगा. सो D के लिए आपको 4 मिलेगा. देखिए हमको A के लिए 1 4 मिलना चाहिए, B के लिए 2 3 मिलना चाहिए. थोड़ा ऑप्शंस यहाँ कंपेयर करेंगे. A के लिए 1 4 मिलना चाहिए, सो B के लिए 2 3 मिलना चाहिए, C के लिए 3, D के लिए 4. सो इसलिए आपका ऑप्शन बनेगा ये 29th ऑप्शन ये. Question number 30. The work done during the contraction of a gas, compression, work done on the system. So the value is positive. ये D options को हम हटा सकते हैं. इधर B होगा, नहीं है तो C होगा. Of a gas from a volume of 6 liters to 4 liters. Decimeter cube मतलब 1 liter. 6 liters to 4 liters. Work done is equal to so P external into delta V. So P external इन्होंने दिया है 3 atmospheres. वॉल्यूम दिया है 6 to 4, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम आपको मिलेगा 2, 3 2 6 लीटर एटमॉस्फेयर. 1 लीटर एटमॉस्फेयर इन्होंने दिया है 101.32 जूल्स. 6 into 101.32 जूल्स. सो अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर मिलेगा 608 जूल्स. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज बी. Question number 31. Question number 31. Alcohols are treated with concentrated H2SO4 delta. Concentrated H2SO4 is a dehydrating agent. So dehydration of alcohols in acidic medium. So it follows E1 mechanism. Dehydration of alcohols in acidic medium follows E1 mechanism. In E1 mechanism, you know that the first step is formation of carbocation. Carbocation undergoes rearrangement. So here 1 2 methyl shift takes place. So this methyl group shifted here. 1 2 methyl shift. So positive charge. So on heating, it donates electrons. Formation of alkene. Option C is correct. 31 option C. Question number 32. Which of the following is correct set of physical properties of the geometrical isomers? Sir, whenever I am taking geometrical isomers, यहाँ 2 isomers हमारे हाथ में रहेगा. एक है सिस, अदर वन इज ट्रांस. ध्यान से देखिए, यहाँ ट्रांस को 1 दिया है, सिस को 2 दिया है. फर्स्ट वन, हमेशा डाइपोल मूवमेंट सिस को ज्यादा रहेगा ट्रांस से, प्रोवाइडेड दोनों ग्रुप्स should exhibit same nature, either electron donating or withdrawing. Dipole moment is high for cis. That means 2 greater than 1. Dipole moment. Dipole moment is directly proportional to boiling point. So boiling point के लिए भी cis को ज़्यादा रहेगा. और melting point पूछा है. So melting point depends upon the arrangement, packing. पैकिंग ऑलवेज ट्रांस में अच्छा रहता है.
सो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन 2। स्टेबिलिटी भी ट्रांस को ज़्यादा रहेगा क्योंकि पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग नहीं रहेगा, सो इसलिए ट्रांस में स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, इसके लिए 1 इज ग्रेटर देन 2 स्टेबिलिटी। सो फर्स्ट डाइपोल मूवमेंट 2 ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, सेकेंड वन बॉइलिंग पॉइंट 2 ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, नेक्स्ट वन 1 ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2। सो ऑब्वियसली ऑप्शन इज डी। Question number 33. So identify the correct reagents that would bring about the following transformation. अब सोचिए इन्होंने साइक्लोहेक्सेन का चेन अटैच किया है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सो 2 रिएजेंट्स दिया है यहाँ, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होनी चाहिए, इंटरमीडिएट से CHO फॉर्म होनी चाहिए। देखो मान लीजिए मैंने CHO फॉर्म करना है तो ऑप्शंस में PCC है, KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जब KMnO4 PCC का बात आता है, KMnO4 अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि मीडियम एसिडिक मीडियम है। एक मिनट, KMnO4 अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। PCC इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, so this is pyridinium chlorochromate. This pyridinium chlorochromate PCC converts alcohols into aldehydes. Here I can expect from the reaction intermediate should be this one, ताकि ये CH2OH CHO में convert हो गया है। लेकिन डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन A एंड B, हाइड्रोजन यहाँ ऐड होते तो आपको OH यहाँ ऐड होगा इन द एडिशन ऑफ वाटर। That means indirectly you are getting OH substitution on less substituted carbon atom, normally which happens via hydroboration followed by oxidation. In hydroboration oxidation, CH2, hydrogen will be added here, CH2, BH2. In this place you will get OH. That OH will be oxidized to CHO by PCC. So that is why option D is correct. Option D is correct. 34. Alkyne दिया है, alkyne का in the presence of Hg2 plus which acts as catalyst, which engages one pi bond, addition of one water molecule takes place. C triple bond CH, Hg2 plus H2O. In the presence of Hg2 plus, addition of water molecule takes place according to the Markovnikov rule. Tautomerism में पार्टिसिपेट करेगा, C डबल बॉन्ड वो CH3। नेक्स्ट केस में Br2 in the presence of FeBr3, electrophilic aromatic substitution. So Br2 in the presence of FeBr3, bromine will be substituted. It is meta-directing group. You will get C double bond वो CH3 Br. So the option is C. Question number 35. Benzene on treatment with a mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 at 100 degrees centigrade gives concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 is called as nitration mixture. Whenever I am treating benzene with concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4 nitration mixture 1:1 at 60 degrees centigrade, you will get nitrobenzene. But he didn't ask about 60 degrees, he's asking about 100 degrees. So nitration mixture 100 degrees पे आपको मिलेगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। 120 डिग्रीज तक भी हीट कर सकते हैं, सो 120 डिग्रीज के अबव एक्सप्लोजिव होता है। 120 डिग्रीज तक हीट करते तो 135 ट्राइनाइट्रो आएगा, वो थोड़ा डेंजरस है। सो द ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, identify the major product in the reaction sequence. So free radical mechanism, क्योंकि light दिया है Hnu, so bromine will be substituted here. This is the major X. Alcoholic KOH, dehydrohalogenation. This is the double bond. E2 mechanism. Dehydrohalogenation is E2 mechanism, and more substituted alkene is the major product. Sadjev's rule. And next one, HBr in the presence of peroxide. Anti-Markovnikov rule. So Br will be added on the less substituted carbon atom. So option B is correct. And you know that anti-Markovnikov rule is only applicable for HBr. It is not applicable for HCl and HI. Question number 37. Boiling point of N-pentane is higher than 2,2-dimethyl
प्रोपेन, n पेंटेन 1 2 3 4 5, n पेंटेन 1 2 3 4 5, 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सर n पेंटेन का 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन n पेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया is directly proportional to boiling point. So that is why, so first option is correct. सब्स्टिट्यूशन बढ़ते तो सरफेस एरिया घटेगा, स्फेरिकल नेचर बढ़ेगा, स्फेरिकल नेचर बढ़ते तो सरफेस एरिया घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, हम एक किताब के ऊपर दूसरे किताब रख सकते हैं क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है किताब का, लेकिन एक फुटबॉल के ऊपर दूसरा फुटबॉल हम नहीं रख सकते हैं, गिर जाएगा नीचे क्योंकि सरफेस एरिया कम है, अट्रैक्शन फोर्सेस कम है। अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहते हैं। There is a steady increase in boiling point with increase in molecular mass. Obviously molecular mass बढ़ते तो so boiling point बढ़ता है, प्राइमरी क्राइटेरिया है, लेकिन ये पॉइंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ये दोनों सही है, सो ये रीजन बनना है तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। n पेंटेन में सरफेस एरिया ज़्यादा है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन में सरफेस एरिया कम है, सो इसलिए n पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ऐसा बोलना पड़ेगा। नहीं है तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, सो इसलिए आपको आंसर मिलेगा ये। देखिए ये में ये एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। हमेशा ये मत सोचिए कि ये ऑप्शन में आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही देगा। यू हैव टू रीड दैट, समटाइम्स इट विल बिकम ए मिस्टेक। ऑप्शंस को रीड करके आंसर करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 38, CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 2, 4 डाइमिथाइल पेंटेन। He has given 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। मोनोक्लोरिनेशन कर रहा है, so मोनोक्लोरिनेशन problems are very very important. We can expect them in mains as well as in advance. किसी न किसी स्लॉट में मिल ही जाता है एक क्वेश्चन। मोनोक्लोरिनेशन, डाइब्रोमो प्रोडक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स दिया है, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स दिया है, आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये 4 मिथाइल ग्रुप सिमिलर हैं, ये दोनों CH ग्रुप सिमिलर है, बचा है ये। मैंने लेकिन पूछा था क्वेश्चन में इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, पहले इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे CH2Cl, तब एक कायरल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए इससे 2 प्रोडक्ट्स मिलेगा हमको। इसके साथ साथ यहाँ एक प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि कायरल नहीं बनेगा। जिस कार्बन एटम के ऊपर क्लोरीन है इसके ऊपर दोनों मिथाइल ग्रुप्स होगा। इसके साथ साथ हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा बीच वाला। हाइड्रोजन्स जितना एनवायरमेंट्स में है उतना वैरायटीज का प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा, प्लस कोई कायरल बनते तो तब इससे 2 काउंट करना पड़ेगा आपको। ये 2 हैं, ये 1, ये भी 1, पूरा इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स 4। 38 का आंसर होगा 4 कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इन विच केस चांसेस ऑफ SN2 इज मैक्सिमम। कोई लिखने का भी जरूरत नहीं, सीधे देख के आप बता सकते हो। SN2 के लिए आपका सब्स्टिट्यूशन बहुत कम होनी चाहिए। ये B C D, देखिए ये C, ये दोनों टेरिशरी हैं, आप कुछ भी करिए। सो टेरिशरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कभी भी SN2 नहीं होगा, प्राइमरी के अंदर कभी भी SN1 नहीं होगा अनलेस अनटिल रेजोनेंस स्टेबिलिटी है तो। इसलिए आपको ए को हटा सकते हैं, बी को हटा सकते हैं, ये सी में आपको SN2 होगा ही नहीं, दोनों टेरिशरी है। और बचा है बी एंड डी। बी एंड डी में बी हो गया सेकेंडरी, डी हो गया प्राइमरी। सो प्राइमरी इज द बेस्ट फॉर SN2 मैकेनिज्म। सो ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 39 मैं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 39, सो ए इज टेरिशरी, बी इज सेकेंडरी, सी इज टेरिशरी, सो डी इज primary. DM stands for, DMF stands for dimethyl formamide. Dimethyl formamide, a protic polar solvent. फर्स्ट वन तो आपको पता है, सो फर्स्ट वन H2O में दिया है, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में दिया है। प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में इधर E1 होगा, नहीं है तो आपको वहां आपको E1 भी हो सकता है, E2 प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट दिया है ना, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट देते तो आपको E1 हो सकता है, नहीं है तो SN1 हो सकता है। C2H5O- इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, वहां E1 डोमिनेट करेगा। दूसरा B C D में, सो C में पॉसिबल नहीं होगा। सो जब आप B D का बात करते हैं, D का रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा क्योंकि D इज प्राइमरी, प्राइमरी में SN2 रिएक्शन अच्छी तरह से होगा।
39 ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 इज आल्सो सिंपल। वहां दिया है 1 2 3 4 ब्यूटाइल आयोडाइड अंडरगोस SN2 रिएक्शन फास्टर देन ब्यूटाइल chloride. Yes, reactivity order of alkyl halides Ri is greater than or Br is greater than or Cl is greater than Rf, क्योंकि I- is a good leaving group. रीजन में पॉइंट बताया कि नहीं बताया? आयोडीन इज ए बेटर लीविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा रहेगा सर। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज को पूरा स्प्रेड करके स्टेबलाइज कर सकती है। इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ ये ऑप्शन देख लीजिएगा, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है एंड वही आंसर हमको चाहिए। Which of the following is the correct order of dipole moment of isomeric dichlorobenzenes? Question number 41. Dichlorobenzenes दिया है, दोनों ग्रुप्स का नेचर सेम है। जब दोनों ग्रुप का नेचर सेम होता है, डाइपोल मूवमेंट is inversely proportional to bond angle. This is the theta. In this one, bond angle in between these two is 60 degrees. This is 120 degrees. This is 180 degrees. So dipole moment is inversely theta whenever nature of groups same. So first one greater than, second one greater than, third one. Ortho, meta, para. 41 option is B. 42. In the sequence below Y can be. बेंजीन दिया है, इसको क्लोरिनेशन कर रहा है। बेंजीन को क्लोरिनेशन करते तो क्लोरोबेंजीन आएगा। क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक हैलोजन है, एन डबल बॉन्ड वो है। ये दोनों आपको याद रहनी चाहिए। These two are deactivating groups, but they are ortho para directing groups. So आपको मिलेगा ortho and para chloro nitro benzene. So first ये option. Question number 43. Correct reactivity order of SN1. जब भी SN1 का reactivity order पूछा है, तब आपको देखना पड़ेगा stability of carbocations. SN1 reactivity directly proportional to stability of carbocation. याद रखिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर नहीं होगा एलिफैटिक कंपाउंड्स में, इसलिए फर्स्ट का लास्ट प्लेस आएगा। इसके अंदर ब्रोमीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर होते तो SN1 रिएक्शन नहीं होगा। सो फर्स्ट इज लीस्ट रिएक्टिव। सेकेंड वन बेंजाइल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इसलिए सेकंड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगा। आपको ऐसा कार्बोकैटायन मिलेगा CH2+। एंड थर्ड फोर्थ लेते तो आप एक क्लोराइड है, एक ब्रोमाइड है। अभी अभी हम डिस्कस किए हैं ब्रोमाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा। सो इसलिए 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1 होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर दोनों सेम है। 2 4 3 1 ऑप्शन डी। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ DDTs देखिए, CCl3 C डबल बॉन्ड OH को हम कहते हैं क्लोराल। इट रिएक्ट्स विथ 2 moles ऑफ क्लोरोबेंजीन। आपको मिलेगा, सो दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज द सेकेंड कार्बन एटम। दिस इज 1 1 1 ट्राइक्लोरो। 2,2 एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर हमको नंबरिंग देना पड़ेगा 1 2 3 4, इसलिए मैं यूज करता हूं बिस। 2,2 बिस। बिस बोल के इसका नाम बताना पड़ेगा। व्हाट इज दैट नेम? 4 क्लोरोफिनाइल। 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन। अब चेक करें तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल इथेन भी दिया जा सकता है। सो लेकिन यहाँ ऑप्शन ये दिया हुआ ऑप्शंस में सही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45. The compound that will not give iodoform on treatment with alkali and iodine. Iodoform टेस्ट देने के लिए आपको इधर CH3 CHOH का जरूरत है, नहीं है तो CH3 C डबल बॉन्ड वो का जरूरत है। अल्कोहल मिले तो आप इसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन इन अल्कलाइन मीडियम दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दे कैन ऑक्सीडाइज अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। बट आपको ये कन्फर्मली होनी चाहिए कि
3 अल्फा हाइड्रोजन्स। 3 अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते तो रिएक्शन नहीं होगा। फर्स्ट वन इज एसीटोन, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स होते तो आपको मिलेगा आइडोफॉर्म। बी इथेनॉल, CH3 CHOH, ये भी मिलेगा, पहले ऑक्सीडाइज होगा, CH3 CH2OH को CH3 CHO में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड वन डाइइथाइल कीटोन, हाँ ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि C डबल बॉन्ड वो जिस कार्बन एटम को अटैच हुआ है इसके ऊपर हमको 3 हाइड्रोजन्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स हैं, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करते तो आपको एसीटोन मिलेगा एंड इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स भी हैं। सो इसलिए 45 क्वेश्चन का आंसर है सी। रिमाइनिंग 3 मॉलिक्यूल्स आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन डाइइथाइल कीटोन वोंट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। नेक्स्ट 15 grams of CH3 MgBr is decomposed by H2O to give how many grams of CH4? बेसिक रिएक्शन है CH3 MgBr प्लस H2O, ग्रिग्नॉड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद CH4 प्लस MgOH देता है। इसका मॉलिक्यूलर मास है 16। CH3 MgBr का देते तो CH3 MgBr का मॉलिक्यूलर वेट होगा, कार्बन कितना है 12 प्लस 3 प्लस 24 प्लस 80, अप्रॉक्सीमेटली आपको आ जाएगा 120। आप 120 वेट ले लीजिए। 120 grams of CH3 MgBr generates 16 grams of methane, 15 grams of CH3 MgBr generates X grams. So X is equal to 15 into 16 by 120. 15 into 16, 240 by 120. So 2. How many grams of methane you will get? 2 grams of methane you will get. So 46, answer is 2 grams. 47 कीटोन दिया है, इसको PCl5 से रिएक्ट करवाएंगे। 1 mole of PCl5 is enough to react with कीटोन। ये POCl3 बन के बाहर आएगा, आपको 2 क्लोरीन एटम्स ऑक्सीजन के जगह पे आ जाएगा, जिम डाइहैलाइड। सो नाउ अल्काइन बनाने के लिए आपको 2 moles ऑफ NaNH2 का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये टर्मिनल अल्काइन नहीं दिया है। टर्मिनल अल्काइन देते तो 1 मोल ज्यादा यूज होता था, लेकिन टर्मिनल अल्काइन नहीं दिया है इन्होंने, सो इसलिए सिर्फ 2 मोल्स का ही यूज होगा। टर्मिनल अल्काइन फॉर्म होते तो क्या होगा कि दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, 1 more mole of NaNH2 will be consumed to remove this acidic hydrogen, तब 3 मोल्स का जरूरत पड़ता है, लेकिन ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, इसलिए 2 मोल्स NaNH2 का जरूरत पड़ेगा। ए का वैल्यू 1 है, मोल्स ऑफ NaNH2 इज 2, 2 + 1 is 3। क्वेश्चन नंबर 47, आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 48, अगेन PCC यूज किया है, 4 मोल्स यूज किया है। PCC यूज करने के बाद अब कीटोन मिला है आपको या आल्डिहाइड मिला है, जहां भी आल्डिहाइड रहेगा वहां आपको प्राइमरी अल्कोहल रखिएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड वो OH, क्योंकि जहां भी कीटोन फॉर्म हुआ है वहां आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेगा। हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर देयर हियर? 4 OH ग्रुप्स आर देयर। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड कंज्यूम्ड बाय रिएक्टेंट। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड्स, एक मॉलिक्यूल X मोल्स को कंज्यूम करते तो मॉलिक्यूल के अंदर X OH ग्रुप्स रहेगा। इसका मतलब कितना OH ग्रुप्स मॉलिक्यूल के अंदर रहेगा उतना मोल्स एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड को मॉलिक्यूल कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर 4 OH ग्रुप्स हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल 4 मोल्स ऑफ AC2O को कंज्यूम कर सकता है मैक्सिमम। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना मोल्स OH है पता करना है तो आपको तुरंत एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा दीजिएगा इसको, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना OH ग्रुप्स है। क्वेश्चन नंबर 49, H2 + O2 gives rise to 2 OH, कोई चार्जेस नहीं दिया है सर, एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस दिया है, ये रिएक्शन का पूछ रहे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए आपको इंफॉर्मेशन दिया है H2 + O2 gives rise to 2 OH, वैल्यू कितना है सर
78 सारे किलो जूल्स में है, दिक्कत नहीं। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स राइज टू H2O 242। वेरी गुड। हाँ, H2 2H सारे गैस फेज में है सर। डेल्टा H0 इज 436, हाफ O2 249। लेकिन हमको चाहिए इस रिएक्शन के लिए H2O गिव्स राइज टू H प्लस OH। अब हमको क्या करना है कि H2O रिएक्टेंट साइड होनी चाहिए, तब ए रिएक्शन को हम पकड़ेंगे, उल्टा करेंगे। सो H2O गिव्स राइज टू H2 प्लस हाफ O2 है ना सर, हम इसको क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2H2O गिव्स राइज टू 2H2 प्लस O2। रिएक्शन को रिवर्स करने पे साइन भी चेंज हो जाएगा, 2 इंटू 242 आएगा। वेरी गुड। H2O रिएक्टेंट साइड आ गया है। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन आनी चाहिए, OH आनी चाहिए। प्रोडक्ट साइड OH यहाँ है, H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2OH कितना है 78। और प्रोडक्ट साइड कौन आनी चाहिए, हाइड्रोजन। H2 गिव्स राइज टू 2 हाइड्रोजन कितना है 436। ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन 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 चला जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन चला जाएगा। आपको 2H2O गिव्स राइज टू 2OH प्लस 2OH, इसको ऐड करेंगे 998 आया है। लेकिन हमको चाहिए H2O 1 मोल के लिए H2O 499, X का वैल्यू इज 499 किलो जूल्स पर मोल। ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे आपको देखना पड़ेगा सर रिएक्शंस क्या क्या दिया है। हमको रिएक्टेंट साइड, टारगेट रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड कौन सी है, प्रोडक्ट साइड कौन सी मॉलिक्यूल है, वो देख के आपको फ्रेम करना पड़ेगा। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड पे देखना पड़ेगा। आंसर 499 है। लास्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.3 मोलर H2SO4 इज Q1। देखो सर, 1 मोल H प्लस आयन्स 1 मोल OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करने पे आपको जितना एनर्जी रिलीज होगा, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल रहेगा, है कि नहीं। 1 मोल H प्लस को न्यूट्रलाइज करते तो इतना मिलेगा। लेकिन हम 0.3 मोल्स H2SO4 ले रहे हैं। 0.3 मोलर H2SO4 के अंदर 0.6 मोल्स H प्लस आयन्स रहेगा कि नहीं रहेगा। इसको न्यूट्रलाइज करते तो आपको 0.6 इंटू 13.7 किलो कैलोरीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, which is nothing but Q1। क्वेश्चन का मीनिंग ये है 0.3 मोलर H2SO4 में जितना H प्लस आयन्स है, इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद जितना एनर्जी रिलीज हुआ है, इसको Q1 पकड़ेंगे। 0.1 मोलर HCl के अंदर कितना H प्लस आयन्स है, इसको OH माइनस के साथ न्यूट्रलाइज करने के बाद एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको जो मिला है वो Q2 होगा। तब इसका Q1 Q2 का रेशियो क्या है। अभी 0.1 मोलर HCl के अंदर 0.1 मोलर H प्लस ही रहेगा, क्योंकि एन फैक्टर 1 है, इसका तो एन फैक्टर 2 है, इसलिए डबल हो गया है। सो इसलिए इसका एनर्जी Q2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 13.7 किलो कैलोरीज। अभी देखो Q1 बाई Q2 कितना है पूछा है आपसे। Q1 बाई Q2 0.6 इंटू किलो कैलोरीज बाय 6। What is the value of Q1 by Q2? Q1 by Q2 is 6. So the last option is 6. Question number 50. Thank you, sir. Thank you very much.